Hello students, hello everybody. So welcome to all of you on our digital platform. Here on our app, we will give you every class in a very descriptive manner. So firstly, we will going to discuss what we are going to study in our upcoming classes. So firstly, we will take a look of our syllabus. Okay. So our first unit is about power sharing and federalism. What are the major differences between them and what is power sharing? Power sharing means what? Means the power is between shared between the state and central, and the very important thing is what are the role of central government, what are the role of state government. Everything we will discuss in this chapter, federalism. Okay, sorry, in a power sharing, and after that we will move to our next chapter, which is on federalism. What are the model of federalism and what are the model of unitarianism. We will discuss everything in a very descriptive manner, and after that we will move to our next topic, which is on democracy and diversity. What are the major differences between them and how democracy tackle diversity, we will discuss in a very depth manner. Okay, and our fourth chapter is gender, religion and caste. Okay, gender, religion and caste. Give me a second. हाँ, तो जो हमारे यहाँ सब कुछ जेंडर, रिलीजन, इन सब पे जो डिवाइड है, बटा है ना, उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हैं उनके बाद उनके ऊपर, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी, इन सभी बारे में हम बहुत विस्तार से देखेंगे इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर। फर्स्टली वी विल टेक अ लुक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज ऑन पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर शेयरिंग? देखिए, वेल, here already also a example is given about Belgium and Sri Lanka, but before that we will take a look about power sharing. What are the major differences between power sharing and how power is shared between the countries and how power shared between the center and state. देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए अभी स्टेट है ना, अब मान लीजिए टेक एग्जांपल दैट if government want to build a dam, means government want to build a dam for water, for water, and government want to build it in four other states. Give me a second. Yeah, four other states. So how government will manage it in a single time? Means government कैसे इसको एक single time पर manage करेगी? Is it possible to manage it? तो आप सभी को पता है कि ये मैनेज नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि अब हरियाणा में एक कोई रोड बनाना है, गवर्नमेंट वांट टू मेक अ रोड इन हरियाणा, सो हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक अ रोड इन हरियाणा? सो द सिस्टम which share the work, which share the power between state and center is called sharing of power. Means the power is shared between the state government and the central government. तो जो शक्ति है वो कुछ शक्तियां इनको बांट दी कि आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, है ना, और ये काम आप करोगे, ये काम मैं करूंगा। तो देखिए, आपको पता है इंडिया, यू एवरीबॉडी नोज दैट वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, एंड rules are mentioned. What are the works of states, what are the works of for the central government, everything is mentioned in this Indian constitution. So rules are mentioned, what work will be done by state government, what work will be doing by central government, everything is mentioned in our constitution. तो सब कुछ जो है हमारे संविधान में बताया गया। हमने आपको बताया कि संविधान जो है एक बुक है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं कि ये काम है, ये काम कौन कौन करेगा, है ना। तो ये पावर शेयरिंग की बात भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि ऐसे ऐसे काम होगा, और कोई भी ऐसा काम होगा तो राज्य सरकार ऐसे करेगी, है ना, और केंद्र सरकार ऐसे करेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी पावर शेयरिंग में है। तो आपको ये बात समझ में होगी। पावर मतलब क्या होता है? जो शक्तियां होती है उसको बांट देना, है ना। किसी के पास ज्यादा पावर हो, अब तो कोई पावर बांट नहीं सकता। देखो, सुशील कुमार जो था वो कितना पावरफुल था, है ना। उसने अपने पावर से क्या किया, एक व्यक्ति को मारने की कोशिश किया, सॉरी मार दिया, सागर यादव करके था, तो उसने अपने पावर का क्या किया, गलत यूज किया, है ना। तो ऐसी ये पावर वही है कि आपके पास जब ज्यादा पावर है तो आप उसका मिसयूज करते हो, है ना। तो इसी मिसयूज को भी रोकने के लिए
एक कंसेप्ट लाया गया, वो था किसका, पावर शेयरिंग का। तो ये मोटा मोटा मीनिंग है ना, पावर शेयरिंग। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, सो फर्स्टली आस्क मी अबाउट इट, वी विल क्लियर, आई विल क्लियर इट in your WhatsApp chat or in your application chat. Okay, so firstly, so we have to move our next topic, which is about Sri Lanka and Belgium. Okay, these are two important case studies. Okay, and these are the very important thing what we have to listen, what we have to you have to study about it. Okay, the Belgium is a very small country in Europe. Firstly we will take a look about Belgium. हाँ, ये Belgium है ना, तो Belgium is a very small country in a Europe and smaller in area than the state of Haryana. मतलब ये हरियाणा से भी छोटा है। अगर मैं हरियाणा का शेप साइज इतना बता दूं तो ये इतना, बेल्जियम जो है इट्स शेप ऑफ बेल्जियम। हाँ, तो बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है ना। एंड इसके जो बॉर्डर्स हैं वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ लगते हैं। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, केवल 1 करोड़ पॉपुलेशन है ना। इनकी जो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है केवल 1 करोड़ है। आप सोच के थिंक अबाउट इट। यूपी एंड बिहार हैव 19 crore and Bihar have 12 crore, and these are just a state in our country. In UP have 19 crore of population and Belgium is a country. UP is a state and Belgium is a country, and in a country only 1 crore population exists, and in our state 19 crore of population exists. Okay, so there half of the population are डाइवर्सिफाइड इन ऑन देयर इथनिक कंपोजिशन। इथनिक क्या होता है, मींस देखिए कोई जाति धर्म इन सब के आधार पर जो लोग बटे होते हैं ना, उनको इथनिक ग्रुप कहते हैं। जो जैसे अल्पसंख्यक है तो ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, ये एथनिक ग्रुप कहलाते हैं। एंड इन दिस स्मॉल कंट्री इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ओके, जो इनका कॉम्पोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो इथनिक ग्रुप है वो लगभग 59% है जो फ्लेमिश रीजन में रहती है। फ्लेमिश एक रीजन है, वहां पर रहती है, और डच जो लैंग्वेज है उसको बोलती है। और अनदर 40% ऑफ पीपल्स लाइव इन वेलोनिया रीजन, है ना, एंड दे स्पीक फ्रेंच। मतलब एक देश है जिसकी 100% बेल्जियम है। बेल्जियम की जो 100% जो पॉपुलेशन है, देयर 100% पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 59% ऑफ पीपल्स आर belonging in a special region which is Flemish region, है ना, in a Flemish region, and 40% are people, 40% of peoples are belonging in a Wallonia region। Wallonia है ना, तो ये Flemish region के हैं, ये Wallonia region के हैं। अब देखिए तो, और केवल 1% ऐसे हैं जो जर्मन भी बोलते हैं। तो आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं। मतलब एक देश है और इसमें 3 अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, है ना। और इन दिस सिटी इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में लगभग 80% जो पीपल्स हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और जो 20% है वो डच बोलते हैं। आपको देखिए, आप ये जो देख रहे हैं, जो ये वेलोनिया रीजन के लोग हैं यही फ्रेंच बोलते हैं, और वेलोनिया रीजन के ही लगभग लोग जो है 80% लोग कहाँ रहते हैं, इनकी जो मेन कैपिटल है ब्रुसेल्स में। देखिए जो कैपिटल होती है, कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ एनी कंट्री और एनी स्टेट, एंड इन हिज कंट्री 80% ऑफ पीपल आर French speaker, and only while 20% are Dutch speaker. Okay, the minority French speaking peoples, give me a second, give me a second students, हाँ, the minority French speaking community was relatively rich and powerful। देखिए जो यहाँ पर ये इनके कैपिटल में रहते हैं, मतलब जो 80% जो ये लोग दिख रहे हैं आपको, ये 80% लोग यहाँ पर बहुत पैसे से बहुत रिच है, और इनकी कम्युनिटी जो है बहुत पावरफुल है। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने जो है वहां पर जो ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप है, आपको पता है कि जो डच वाले ग्रुप मैंने आपके बारे में आपको बताया, तो ये डच ग्रुप को क्या करते हैं, बहुत दबा के रखते हैं। और यहाँ पर जो एजुकेशन है इनका वो बहुत अच्छा है इनके कंपैरिजन में, मतलब फ्रेंच लोगों के कंपैरिजन में इनका एजुकेशन जो है बहुत खराब है।
फ्रेंच लोग जो है एजुकेशन में और ट्रेडिंग में, इन सब में बहुत आगे है। तो जो एक टेंशंस होती है ना, वो डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर के बीच बेल्जियम में बनी रहती है ना। फ्रेंच स्पीकर और जो डच स्पीकर है इनके बीच ये समस्या बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो भाषा है अलग है, इनके जो लोग हैं वो अलग है ना। कुछ परसेंट लोग हैं जो डच बोलते हैं, लगभग 40% लोग, और 60% लोग के आसपास लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो दीज आर द रीजन, इज अ वेरी is a reason for the conflict between Belgium. Okay, and during the 1950s and 1960s, there is a tension raised between Dutch speaking and French speaking. Okay, the tension between two communities was much more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. Okay, मतलब जो डच स्पीकिंग पीपल हैं इनकी जो संख्या है वो लगभग 60% है, लेकिन इनकी जो कैपिटल है वहां पर ये माइनॉरिटी है, और कैपिटल में ही जो सारे लोग हैं वो फ्रेंच के हैं, लगभग 80% लोग, और वो लोग रिच भी बहुत ज्यादा है और उनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। तो ये यहां तक हमने अभी डिस्कस किया, एंड वी विल डिस्कस more things in our next lecture. So thank you class, thank you so much.